बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों खासकर आसनसोल से चुनाव के बाद हिंसा और विरोधी दलों के कार्यालयों पर हमले की खबरें सामने आ रही है। इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए आसनसोल उत्तर से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक कृष्ण नंदू मुखोपाध्याय ने ऐसी घटनाओं की तीव्र निंदा की है। मंगलवार को आसनसोल के कोर्ट मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम के बाद से विरोधी दलों के दफ्तरों पर हमले की घटनाएं सामने आ रही है, जो पूरी तरह लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये भाजपा की संस्कृति नहीं है। भाजपा लोकतंत्र में विश्वास रखती है और इस तरह की घटनाओं को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आसनसोल के हर व्यक्ति की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है और कहीं से भी ऐसी घटनाओं की जानकारी मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। জায়গাকে ল অ্যান্ড অর্ডারকে মেনটেন করার জন্য 40 জন কেন, যদি 400 জনকে অ্যারেস্ট করে তাহলে ঠিক কাজ করেছে। আসানসোলে আমি এইরকমভাবে কোনো জিনিস এইরকম অশান্তি বরদাস্ত করব না। আসানসোলের জনতা শান্তিতে থাকতে হবে, তাদের কোনো রকম আইন শৃঙ্খলার অবনতি শহরে হবে না, ভীতি প্রদর্শন হবে না। সাধারণ মানুষ সুন্দরভাবে নিশ্চিন্তে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করবে। কোনো রকম ভায়োলেন্স এই জিনিস আমরা মানব না, এই জিনিস আমরা করতে দেব না। বেশ কিছু সংখ্যালঘু এলাকায় দোকানপাট খোলেনি অনেক জায়গায়, তাদেরকে কি কোনো বার্তা আপনি দেবেন? আমরা এই আজকে প্রেস করার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে সাধারণ মানুষ যে কোনো সম্প্রদায়েরই হতে পারে, কোনো ভয় ভীতির কোনো কারণ নেই, একদম ভয় পাবেন না। আমাদের যে ফোন নাম্বারগুলো আছে, আমাদের কার্যকর্তা যারা আছে তারা সদা সতর্ক রয়েছে, 24 ঘন্টা 24x7 প্রশাসনের সঙ্গে জাগ্রত আমরা রয়েছি। প্রশাসন রয়েছে, প্রশাসনের কাজ করছে, আমরাও আমাদের রাজনৈতিকভাবে আমরা কাজ করছি। সমস্ত সম্প্রদায়ের সব মানুষের উদ্দেশ্যে আমাদের বার্তা, কেউ ভয় পাবেন না। নিজের দোকান, নিজের কাজকর্ম যা আছে আপনারা চালু করুন, আপনারা বেরোন। কারুর কোনো অসুবিধায় ডাইরেক্ট আমার সঙ্গে যোগাযোগ করুন, আমার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করুন, আমার পার্টির কার্যকর্তা যেখানে আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। কোনো অসুবিধা হবে না। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কোনো প্রবলেম হবে না, সেটাকে ঠিকঠাক করার দায়িত্ব ভারতীয় জনতা পার্টির। যদি কিছু মানুষ চক্রান্ত করছে, কিছু মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির ছদ্মবেশে ঢুকে এই জিনিস করছে, আমরা বলছি আমাদেরকে জানান, আমরা তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। আমরা রয়েছি, কাল রাত থেকে আমরা রয়েছি, বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি প্রশাসনের সঙ্গে। আজকেও আপনাদের মাধ্যমে বলছি যে এই জিনিস ভয় পাবেন না, আপনারা নিজের आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध हैं। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9838
221382 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা। আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर और आसपास के इलाकों में चुनाव परिणाम के बाद राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। मंगलवार सुबह दुर्गापुर नगर निगम परिसर में उस समय माहौल गर्मा गया जब सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता वहां इकट्ठा हो गए। आरोप है कि कार्यकर्ता नगर निगम भवन के अंदर घुस गए और छत पर भाजपा का झंडा लगाकर प्रतीकात्मक रूप से कब्जा करने का दावा किया। मौके पर चंद्रशेखर बंदोपाध्याय और लक्ष्मण चंद्र घुरई भी मौजूद थे। बाद में दोनों विधायकों ने नगर निगम के कमिश्नर से मुलाकात कर विभिन्न प्रशासनिक मुद्दों पर चर्चा की। इस घटना के बाद इलाके में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सालानपुर ब्लॉक के आछड़ा ग्राम पंचायत में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना सामने आई है। यहां सरकारी दस्तावेजों को जलाने का भी आरोप लगा है। इस घटना को लेकर आरोप भाजपा समर्थित असामाजिक तत्वों पर लगाया गया है। কি আছে না আছে আমি আগে বলেছি, গরিব মানুষকে পাট্টা আমরা দেবো। যদি প্রয়োজন পড়ে ওই জায়গায় যদি এডিট হয়, আমরা গরিব মানুষকে পাট্টা দিয়ে তার পুনর্ব্যবস্থা করবো। দখল হচ্ছে না সরকারি জমি। না, দখল প্রশ্ন নেই, দখলের প্রশ্ন নেই। অভিযোগ যে ওটা গেলেছিলেন, এডিটের নাম দিয়েছিলেন, বাস্তব আছে কিনা, বা উনি কাউকে বিক্রি করছেন কিনা, বা উনি হতে পারবেন কিনা আমরা কেউ জানি না। বাস্তব যেটা আছে আমরা দেখার পরে সিদ্ধান্ত আমরা পরে নেবো। কতগুলো জায়গা আছে যেমন হচ্ছে এসেছিলেন এবং বলার জন্য যে নতুন সরকার যেহেতু পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হচ্ছে এবং আমাদের ডিএমসিতে যে প্রশাসক মণ্ডলী আছে মনোনীত, তারা যেন আর না আসেন বা তাদের রেজিগনেশন সংক্রান্ত কোনো খবর আছে কিনা এই বিষয়ে খবর আছে। আপনি কি বললেন? আমরা রেজিগনেশন সংক্রান্ত এখনও আমার কাছে ইমিডিয়েটলি কোনো কিছু আসেনি। যদি আসে তো নিশ্চয়ই সেটা আমি যথাযোগ্য স্থানে পাঠিয়ে দেবো বা এই বিষয়টা আমি একটু ডিএমসির সাথে আলোচনা করে নেব। पश्चिम बंगाल के जमुड़िया में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद माहौल पूरी तरह बदलता नजर आ रहा है। खुट्टाडीही गांव में इस जीत का जश्न कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया, जहां कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने करीब 500 मीटर लंबी दंडी यात्रा निकालकर अपनी खुशी और शक्ति का प्रदर्शन किया। इस जुलूस का नेतृत्व भाजपा नेता निगमानंद चक्रवर्ती ने किया। ढाक ढोल, शंखनाद और गेरुआ झंडों के साथ निकली इस रैली ने पूरे इलाके का माहौल उत्साह और जोश से भर दिया। सड़कों पर जगह जगह लोगों की भीड़ देखने को मिली, जो इस जीत को ऐतिहासिक बता रही थी। भाजपा समर्थकों का कहना है कि ये जीत लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक संघर्ष का परिणाम है। उनके मुताबिक ये दंडी सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश भी है कि अब इलाके में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीणों के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था और रैली के दौरान अब बदलाव होगा जैसे नारे गूंजते रहे। पूरे आयोजन को भाजपा ने अपनी ताकत और जन समर्थन के प्रदर्शन के रूप में पेश किया है।
এটা হলো হচ্ছে একটা রাষ্ট্রবিরোধী দল এবং একটা সন্ত্রাসী দলের ডিফারেন্স। সন্ত্রাসী দলরা করে কি বোম ফাটিয়ে বিজয় আনন্দ পালন করে, আমরা একটা রাষ্ট্রবাদী দল, আমরা পুজো দিয়ে বিজয় আনন্দ পালন করছি। এই যে বিপুল হারে যে জয় জামুরিয়ার বিধানসভায়, কি বলবেন ভোটারদেরকে? ভোটারদেরকে প্রথমে ধন্যবাদ দেবো এবং জামুরিয়ায় যে সাধারণ মানুষের উপর একটা দলের অত্যাচার, সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়ে আর জামুরিয়াতে বিজেপিকে মানুষ চেয়েছে, বিজেপি এনেছে। আমরা নির্বাচনের আগে বহুবার আমরা তুলেছি যে বিজেপি যে তৃণমূল রয়েছে, তৃণমূল অনেক কাজ তারা করেননি এবং মুখে অনেক কাজ বলেছেন যে 100 কোটি টাকার কাজ, রাস্তা বানিয়েছি, এই বানিয়েছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত দেখা যায় যে বেহাল দশা। এই যে বাহাদুরপুর হয়ে যে জামুরিয়া যাওয়ার যে রাস্তা, সেই রাস্তার বেহাল দশা, বিভিন্ন জায়গায় পানীয় জলের সমস্যা, এবং কি জামুরিয়ার বাসীদের আরেকটা দাবি ছিল যেটা এখানে ফায়ার ব্রিগেড হওয়ার। আপনাদের পক্ষ থেকে মানে এই সকলকে পূরণ করার কোনো তারা হচ্ছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে তারা সিদ্ধহস্ত ছিল। তারা বিগত 15 বছর মানুষের কোনো কিচ্ছু কাজ করেনি, যার জন্য মানুষ আজ আমাদেরকে এনেছে, আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছে এবং আমরা সাধারণ জনগণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, আমরা তাদের সমস্ত চাহিদা पूर्ण करार 100% चेष्टा करब। आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बीएनआर मोड़ पर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब कांग्रेस के नेता सौभिक मुखर्जी और कार्यकर्ता तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय पर कब्जा करने पहुंच गए। कांग्रेस समर्थकों का दावा है कि ये कार्यालय पहले उनका था, जिसे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद उनसे छीन लिया गया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और केंद्रीय बल पहुंच गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर वहां से हटा दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे अपने पुराने कार्यालय को पुण्य हासिल करने के लिए पहुंचे थे। वहीं पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई की। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बल तैनात है और स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद आसनसोल के कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कुल्टी से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जय पोद्दार ने बड़े अंतर से जीत दर्ज कर एक बार फिर अपनी मजबूत पकड़ साबित की। इस जीत के बाद क्षेत्र में कई जगहों पर भव्य विजय जुलूस निकाले गए। कुल्टी विधानसभा के वार्ड नंबर 16 में लक्ष्मणपुर दुर्गा मंदिर से शुरू हुआ जुलूस बड़ेरा गांव होते हुए सबनपुर गांव में समाप्त हुआ। इस दौरान डीजे के धुन, भगवा अबीर और जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जुलूस में लोगों की स्वेच्छा से बड़ी भागीदारी देखने को मिली और खास बात ये रही कि इस दौरान बुलडोजर भी जुलूस का हिस्सा बनी। वहीं सीतारामपुर में भी एक भव्य विजय रैली का आयोजन किया गया, जो अमृत भारत स्टेशन से शुरू होकर नियामतपुर बाजार होते हुए बराकर स्थित विधानसभा कार्यालय तक पहुंची। इस रैली में टोटो, मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इस मौके पर बीजेपी जिला सचिव सत्यजीत दास समेत कई नेता, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे।
उन्होंने इसे जनता के अपार समर्थन का परिणाम बताया। वहीं आसनसोल जिला मीडिया इंचार्ज और कुल्टी मंडल सौपाध्यक्ष टिंकू वर्मा ने इस जीत को लोकतंत्र की जीत बताते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व और विकास कार्यों पर जनता के विश्वास का प्रमाण है। पूरे क्षेत्र में इस दौरान उत्सव जैसा माहौल रहा और देशभक्ति नारों के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जोरदार जश्न मनाया। पश्चिम बंगाल की जनता का और कुल्टी की जनता का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा, उन्हें बधाई देना चाहूँगा। जिस संख्या में लोगों ने वोट डालकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनाई है, माताओं बहनों को उसमें विशेष रूप से मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भारी संख्या में निकलकर बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।